Good morning everyone. Today we will discuss a new topic, that is Bretton Woods. I am Professor Santosh Nandal. So what are the key actors of Bretton Woods system? Harry Dexter, White, US, American Minister of State; John Maynard Keynes, GB, British economist. So these two are the key actors of Bretton Woods. Now we will discuss about what is Bretton Woods system. Bretton Woods system was an international monetary agreement that standardized currency exchange rates. So what we can say specifically, Bretton Woods system is only to exchange currency. It only relates with the exchange of currency system in the world. Currencies belonging to various nations were pegged against the US dollars. The US dollar itself was pegged against the price of gold. So मीनिंग देयर बाय व्हाट वी कैन से दैट कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है वो करेंसी को एक्सचेंज करने के बारे में बात करता है और जो यूएस डॉलर है उसको गोल्ड के अगेंस्ट के अंदर कैसे उसको पैक्ड किया जाए उस बारे में बात करता है. इट एम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू ग्लोबल एक्सचेंज रेट्स. इट वाज बेस्ड ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड्स. द सिस्टम रेगुलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड between 44 countries and remained in practice from 1945 to 1973. This system collapsed because US dollar could not hold its value. So basic reason of the collapse of this Bretton Woods system was that US dollar could not hold its value. Now we will discuss key gist of Bretton Woods system. What are the key gist of Bretton Woods system? The Bretton Woods system was an international monetary arrangement. Currencies belonging to allied nations were ascertained against the value of US dollars. The US dollar value was fixed against gold prices. So previously all the currencies of the different nations, different countries, their values will be adjusted according to the US dollar value, and US dollar will be adjusted against the gold prices. So this is the basic key gist of Bretton Woods system. Exchange rate stability and regulations of global payments and settlement post World War II were the objectives of Bretton Woods agreement. So specifically there are two major objectives of Bretton Woods system. One is the currency against the different nations in comparison to US dollars, and the price of US dollars in comparison to value of gold. और secondly क्या था कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो ग्लोबल पेमेंट्स के जो क्राइसिस थे उनको क्या करना था, स्टेबिलिटी लेके आना था और उसको रेगुलेट करना था. ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम का ये सेकेंड की जिस था. ऑन जुलाई 1st 1974 on 1st July 1944 730 delegates from 44 countries attended the United Nations monetary and financial conferences. It was held in Bretton Woods, New Hampshire. The Bretton Woods Agreement led to the formation of Bretton Woods institutions, the World Bank and the International Monetary Fund, IMF. World Bank और IMF है, ये दोनों क्या है, ब्रेटन वुड के इंस्टीट्यूशंस हैं. और 1944 के अंदर 44 कंट्री से 73 जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने इसको जो कॉन्फ्रेंस है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था. आफ्टर देन द डिसीजन वाज टेकन इन दैट कॉन्टेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड एग्रीमेंट.
What is it? We will explain in it. On July 1st, 1944, 730 representatives from 44 countries attended the United Nations Monetary and Financial Conference. The conference was held at Bretton Woods, New Hampshire, providing consent to a new international monetary system was the purpose of this conference. It was a collective strategy to recover from the impact of World Bank. तो specifically what we can say that कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जो बेसिक जो पर्पस था, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो सिचुएशन अराइज हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, स्पेसिफिकली 44 कंट्रीज़ का हम बात करते हैं, तो उसके अंदर एक न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम लेके आना था और उस न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को क्या करना था, बेसिक पर्पस था कि जो करेंसी है उसको क्या किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, इकोनॉमीज को क्या किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए. The allied countries duly accepted the Bretton Woods Agreement. Canada, Mexico, Russia, Brazil, China, India, Netherlands, Poland, Belgium, Chile, Czechoslovakia were the active members of nations. So including all these countries, India भी क्या था, एक एक्टिव मेंबर था इस ब्रेटन वुड सिस्टम का, कि वर्ल्ड वार के बाद जो सिचुएशन राइज हुई है उसके अंदर हम करेंसी को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं. In December 1945, the Bretton Woods Agreement led to the formation of two Bretton Woods institutions. तो 1945 के अंदर दो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है वो फॉर्मेट उनकी रचना हुई, बने वो, और उनका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज द लेंडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक. These organizations hold greater significance on the global front. They facilitate international trade and finance nations. So ब्रेटन वुड सिस्टम है जो 1945 के अंदर, उसके अंदर दो बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन हुए, एक आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. और इनका जो बेसिक पर्पस था वो ये था, जो बेसिक जो इनकी इम्पोर्टेंस थी वो यही थी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड और जो फाइनेंस जो नेशंस हैं उन नेशंस को ग्लोबल लेवल के ऊपर कैसे उनको स्टेबलाइज किया जाए. दिस इज द बेसिक responsibility of these two institutions. The World Bank was established to help nations recover from World War II. The IMF regulates global exchange rates. The IMF also facilitates economic cooperation internationally. मतलब जो वर्ल्ड बैंक है उसका बेसिक पर्पस था कि वर्ल्ड वार सेकेंड से कैसे उभरा जाए, और आईएमएफ का मतलब क्या था कि जो ग्लोबल एक्सचेंज रेट्स है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए. और आईएमएफ क्या है कि आईएमएफ फैसिलिटेट भी करता था किस बारे के अंदर, कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम, कि क्या मुख्य विशेषताएं हैं ब्रेटन वुड सिस्टम की. फर्स्ट फीचर है Stabilizing international exchange rates was the primary objective of Bretton Woods system. कि जो इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनको क्या किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, ये सबसे प्राइम मोटो था, ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल ब्रेटन वुड सिस्टम का. सेकंड था, इट वाज एन अटेम्प्ट टू हेल्प नेशंस रिकवर इकोनॉमिकली पोस्ट वर्ल्ड वार II. तो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड वार के अंदर जो इकोनॉमिकली सफ़र हुई हैं कंट्रीज़, उनकी इकोनॉमी को कैसे उभारा जाए, ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था ब्रेटन वुड सिस्टम का. ब्रेटन वुड सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय 44 कंट्रीज. दे एग्रीड टू पैक देयर करेंसीज अगेंस्ट द यूएस डॉलर. जो ब्रेटन वुड है वो 44 कंट्रीज़ ने उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, और वो तैयार हो गई जो उनकी अपनी जो नेटिव करेंसी है
उस करेंसी को यूएस डॉलर के अगेंस्ट में कैसे पैक किया जाए. सो दे वर एग्रीड ऑन इट. द यूएस डॉलर वाज पैक्ड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ गोल्ड फिक्स एट $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड. तो उस टाइम के ऊपर कि जो यूएस डॉलर है वो भी एग्री कर गई कि प्राइस ऑफ गोल्ड के अकॉर्डिंग उसके इन कंपैरिजन टू दैट कि इसकी जो प्राइस है वो पैक किया जाए. और उस टाइम के ऊपर एक जो आउंस है गोल्ड है उसकी जो प्राइस थी वो थी $35. द यूएस डॉलर वाज कंसिडर्ड एन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी. और जो यूएस डॉलर था उसका वो नाम दे दिया इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी का ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर. ये इसका सबसे वन आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम. सो व्हाट यू कैन से दैट कि जो यूएस है वो एक इंटरनेशनल करेंसी उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया ब्रेटन वुड सिस्टम के द्वारा. इट प्रोवाइड ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. तो फॉर मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम कि जो एक्सचेंज रेट है उसको क्या कर दिया गया कि ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रोवाइड करता है जो ब्रेटन वुड सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव था. However, this rate was adjustable depending on time, conditions, need of one country to another country. तो ये इसको adjustable भी किया जा सकता है. It standardized international monetary payments by facilitating currency conversion. तो जो ब्रेटन वुड सिस्टम है वो इस तरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि जो इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनको कन्वर्ट भी किया जाए, एक दूसरे के अंदर बदला भी जाए. Post Bretton Woods, allied countries did not have any control over international payment and settlement system. जो पोस्ट ब्रेटन वुड के बाद जो कंट्री जिसके जो अडॉप्ट किया था इस सिस्टम को, उनको कोई इस तरह का अधिकार नहीं था कि वो इंटरनेशनल पेमेंट के अंदर और सेटलमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी कंट्रोल रख सकें. वो उसके अंदर दो ही उसके सिस्टम थे, एक था आपका IMF का, वर्ल्ड बैंक का, और इंटरनेशनल बैंक और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई द ब्रेटन वुड सिस्टम वाज कोलैप्स्ड. क्यों ख़त्म हो गया ब्रेटन वुड सिस्टम, इसके बारे में हम वी विल डिस्कस इन दिस. Between 1968 to 1973, Bretton Woods was on its way out. US President Richard M. Nixon created USD gold convertibility. In the 1960s, the US dollar struggled to its hold value. So जो पहले जो सबसे जो बड़ा जो रीज़न था इसके कलेप्स होने का, जो US है वो उसके गोल्ड के अगेंस्ट के अंदर अपनी वैल्यू को उसको स्टेबलाइज करने के अंदर जो यूएस डॉलर है इट वाज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स वैल्यू. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन टू collapse the system. Nixon noticed that the US was a short on gold. US gold reserves could not meet the value of dollars in circulation. Economic attempts to revive Bretton Woods failed. In 1973, Bretton Woods Agreement collapsed, it ceased to exist. मतलब जो बेसिक था कि रिजर्व की जो हम बात करते हैं गोल्ड का, तो यूएस वाज नॉट हैविंग द सफिशिएंट रिजर्व फॉर दैट. और बिकॉज ऑफ दैट कि जो उस टाइम के जो रिचर्ड एम निक्सन थे, दे थॉट दैट कि हमारे पास वी डोंट हैव द सफिशिएंट अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड इफ़ यू फिक्स द वैल्यू ऑफ द USD इन अगेंस्ट टू गोल्ड. तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने दे फेल्ट दैट कि जो वुड जो ब्रेटन वुड सिस्टम है इट विल नॉट वर्क. और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था इसके ब्रेटन वुड सिस्टम के फेल होने का था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर मेन रीजन्स हाउ दिस ब्रेटन वुड सिस्टम वाज कोलैप्स्ड. द सिस्टम डिप्लीटेड US gold reserves as more as US dollar were issued to meet international demands. तो जो US डॉलर की जो इन कंपैरिजन टू गोल्ड है वो वैल्यू क्या होगी, डिप्लीट होगी, कम होगी. और US डॉलर को ही इंटरनेशनल डिमांड को पूरा करने के लिए ही उसी को ही मोर एंड मोर जो डॉलर्स हैं वो इशू किए गए.
In the 1960s post-Vietnam War, the US struggled with inflation. Its current account balance was low. Thus, the government decided to call off this system. तो second दो situation that was arises कि 1960s के अंदर US जो वियतनाम पोस्ट वियतनाम वॉर है उस टाइम के अंदर US में इन्फ्लेशन वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वाज क्रिएटेड एट द टाइम हैविंग US वाज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन और जो इसके करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी बहुत लो थे और इसलिए गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को कॉल ऑफ करने में ही अपनी भलाई समझी. मोर ओवर दिस सिस्टम लैक्ड ए प्रॉपर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट. और सबसे बड़ा वन मोस्ट रीज़न ये भी था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैसे एडजस्टमेंट होनी चाहिए उसके अंदर भी इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर. देयर वाज ए डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द US. मीनवाइल देयर वाज ए ह्यूज डिमांड ऑफ US डॉलर्स वर्ल्ड वाइड. US अपने आप में स्ट्रगल कर रहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था और पूरे वर्ल्ड के अंदर US की डिमांड कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही थी एंड दैट रिजल्टिंग टू द लिक्विडिटी इशू. तो इसलिए क्या हो गया लिक्विडिटी इशू फॉर डॉलर. सो दैट हैज़ बिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट हैज़ बिन अराइजन दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड. द US dollar was the international reserve currency. This caused सिग्नेरीज इश्यूज ऑफ फॉर मैनी अदर नेशंस. क्यों? क्योंकि US डॉलर को क्या करता है इंटरनेशनल करेंसी इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था और जब ह्यूज डिमांड ऑफ US डॉलर विल बी इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड सो इट मीन्स दैट विल क्रिएट द क्राइसिस फॉर द US नेशन आल्सो. अदर नेशंस बिलीव दैट दिस सिस्टम प्रोवाइडेड एन अनड्यू एडवांटेज टू द US. The US yielded a high rate of return when sold internationally and lesser when sold domestically. तो US डॉलर की क्या होगी दो तरह की जो है बेनिफिट हो गया US को इन द सेंस कि बाहरी अदर कंट्रीज़ को अदर वर्ल्ड को इफ आर सेलिंग US डॉलर यू आर इंटरनेशनली गेटिंग द मोर बेनिफिट और अपनी कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली आप उतने जो है यू आर सेलिंग योर डॉलर लेस देन. तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर US डॉलर की वैल्यू डिफरेंट है और उनकी कंट्री के अंदर US वैल्यू क्या है डिफरेंट है. Finally, in response to inflation and the current account balance deficit, the government declared restrictions on gold dollar conversions. तो फाइनली क्या डिसीजन लिया गया कि डॉलर और US की जो कन्वर्टिबिलिटी है आपस के अंदर वैल्यू फिक्स करने की US डॉलर के गोल्ड के उसमें और वो क्या कर दी गई वो गवर्नमेंट ने उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी. क्यों? बिकॉज द US was suffering from the inflation और जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी डेफिसिट था उस समय के अंदर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप you will put your comment. I request you to like and subscribe this channel.